धन्यवाद माइक सर। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। लाइब्रेरी से जुड़ा नहीं है लेकिन संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा है। चूंकि तीनों प्रश्न एक जैसे लगे हुए हैं आसपास, तो मेरा सवाल आपसे है कि पिछले दिनों दिल्ली के भारत मंडपम में सभापति महोदय एक संस्था है जिसका नाम सनातन संस्था है, उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने क्या 63 लाख रुपए की सहायता दी, जबकि उस संस्था पर गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या के आरोप हैं और उसकी जांच कर्नाटक पुलिस कर रही है। और उस कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए गए और आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो मेरा सवाल है कि क्या 63 लाख रुपए दिए गए, और अगर आप थे तो आपने इस कार्यक्रम में मंत्रालय की तरफ से सहयोग क्यों करवाया और आप क्या मौजूद थे? मेरा सीधे सीधे सवाल है मंत्री जी से। सभापति महोदय, प्रश्न बिल्कुल भी मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य को इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, वो अलग से इसके बारे में चर्चा करें, मैं उनको सारी जानकारी उसको दूंगा, लेकिन मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, इसलिए मैं इसका उत्तर यहां नहीं करता। डॉक्टर वी शिवदासन जी। Sir, that data given by the minister in this house shows that only 7 crore is the last year expense for library mission. Only 7 crore. They have given only 64.26 crore for the last 3 years assistance to Kerala through this mission. Sir, here in India, lot of reports have suggested minimum 1 library for 1,000 people. This is our ambition. But in India, situation is very worse. The villages, thousands of villages in India don't have libraries. The union government is providing the allocated amount for the libraries is very less amount they are providing. So it is not sufficient to establish and expand the libraries in villages. So my question is whether the government of India have any plan to increase the financial assistance to the libraries to build in each libraries the physical to arrange physical books and digital space for reading and writing to the students and enter the members of the society. So what is the stand on the government on the financial assistance to the state if government is not ready to provide the money to the state? Question is over. Yes, thank you, sir. Thank Honorable you. Minister, please. माननीय सभापति महोदय, while answering my first supplementary, I have clearly stated that under Article 246 of Constitution of India, the library is a state entry list subject. Government of India provides special assistance under National Mission of Libraries to the states to create or upgrade the existing libraries, one as a central library, as a state library, and one as recommended by the state government as a district library. Only for 2 libraries we extend this support, rest just to create a model library so that states can learn out of them and practice creating library infrastructure in their respective states and union territories. I would like to request Ms. Honorable Member that you please impress upon your government to create infrastructure, library infrastructure in the villages. But simultaneously, as I have answered in the previous question, that we have created a India Culture Portal and we have upgraded the India Culture Portal during last. So my answer, I have already stated that we have a limited scope because it's a state subject. Please, impress upon please your take state to look into the subject and request them to do the to improve the library infrastructure. 5th supplementary, Shriman Satnam Singh Sandhu ji. Thank you so much. आपने मुझे सप्लीमेंट्री का अवसर दिया। सर, मेरा सवाल सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को लेकर है। ये सिख रेफरेंस लाइब्रेरी 1946 में गोल्डन टेम्पल प्रसिर में इस्टेब्लिश की गई थी। सर, इसमें 20,000 रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स थी
और इसमें हाथ लिखित ग्रंथ साहब भी थे और सिख इतिहास गुरु नानक देव जी से लेकर पूरा इतिहास था। लेकिन जब 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, जब दरबार साहब पे हमला किया गया, अकाल तख्त को ढह ढेरी किया गया, उस समय सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को जलाने का काम किया गया। सर ये वैसे ही हुआ जैसे तक्षशिला नालंदा में हमारा इतिहास जलाया गया था, वहां सिख इतिहास जला दिया गया, गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पावन बीड़ जला दी गई। सर मेरा सवाल है कि डिजिटल रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत क्या ये आज की AI टेक्निक और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग के साथ इसकी रिकवरी हो सकती है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सदस्य ने बहुत रेलेवेंट प्रश्न किया है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते हुए, मानव सृजित आपदा के चलते हुए और जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत हुई, इस तरह की संपदा उस समय जल करके खाक हो गई, जल करके उसका नुकसान हुआ। निश्चित रूप से इन सब ऐसी सारी चुनौतियों को देखते हुए भारत की इस ऐतिहासिक पुरा संपदा जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल के अपनी विजडम, अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर सृजित किया था, उस सबको सहेजने, संवारने और स्थायी, चिरस्थायी बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ज्ञान भारतम मिशन प्रारंभ किया है। हम उसमें उपलब्ध टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए उन सबको जो है उन सबको न केवल कंजर्व करने, प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं, अपितु तो उनको डिजिटाइज करके, इम्प्रूव करके अगर हम उनको होलिस्टिकली वापस रिक्रिएट कर सकें, इस पर भी काम करते हैं। माननीय सदस्य ने ये विषय आज संज्ञान में लाया है। निश्चित रूप से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में माननीय सदस्य से और इस विषय पर चर्चा करके कैसे हम इस विषय पर आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 214, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। ऑनरेबल मिनिस्टर। उत्तर सदन के पटल पे रखा है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह मुझे इनकी कार्यस्थली और जन्मस्थली जैसलमेर जाने का मौका मिला और मेरी फ्लाइट में इनसे मुलाकात हो गई और इन्होंने मुझे सजेशन दी कि मैं जैसलमेर फोर्ट जरूर देख कर आऊँ। तो सर मैं देखने गया और बहुत ही सर एक अद्वितीय हेरिटेज साइट है वो सर, जहाँ 5000 परिवार अंदर रहते हैं। उसमें मंदिर भी है, उसमें महल भी है, उसमें मार्केट्स भी हैं, बड़ी बड़ी गलियाँ जैसे चांदनी चौक में है। तो वो हाईली अप्रिशिएबल है और मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा मंत्री जी का कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। मेरा प्रश्न एक और जयपुर है राजस्थान में, जो मंत्री जी के स्टेट में भी है और मेरा परिवार भी जयपुर से ही आता है और शायद इसको वीर भूमि भी कहते हैं। लेकिन सर वहां जो डेवलपमेंट हो रही है जयपुर में, जो बिना सोचे समझे हो रही है, उससे जयपुर का जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस खतरे में पड़ रहा है। हमारे देश में सिर्फ 2 शहर हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस है, अहमदाबाद और जयपुर। सर 1991 में जयपुर में तकरीबन 1200 हवेलियां थी जो टूट फूट के अब कम होकर सिर्फ 800 रह गई हैं सर, 1/3 खत्म हो गई हैं। यूनेस्को ने 2025 की रिपोर्ट में जयपुर के कोर जोन और बफर जोन में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर कड़ी आपत्तियां दर्ज की हैं, जैसे कालूपुर रेलवे प्रोजेक्ट, मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। और क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का कोई हेरिटेज इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया, अब यूनेस्को ने दिसंबर 26 की एक सख्त डेडलाइन दी है कि यदि ये काम नहीं हुए तो जयपुर अपना वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस लूज कर सकता है, खो सकता है। माननीय सर, हमारी इकोनॉमी के लिए सर आगे You are giving a big lecture. नहीं सर, आगे सर मंत्री जी के स्टेट की बात करो, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। Giving a big lecture, then he has to big lecture in his मंत्री जी की मैं तारीफ कर रहा हूँ सर। We are not able to complete even one question. आगे सर, आगे Please. आगे सर। You are running an educational institution. You should be very sharp in your question. सर आज 3 सेशन के बाद पहली बार मौका मिला प्रश्न पूछने का सीधा, तो मुझे आज इतना तो मौका सर देंगे। और मंत्री जी मेरी Please come. सर हमारी टूरिज्म
इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। You are yet to come to the question. सर आ गया सर भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। भारत का आकार, भारत की डाइवर्सिटी, अलग अलग मौसम, अलग अलग ऐतिहासिक इमारतें होने के बावजूद हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को भारत में अट्रैक्ट करने में 20वें नंबर पर हैं सर, 20वें स्थान पर। इतना सब कुछ होने के बावजूद छोटे छोटे देश सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यूएई हमसे आगे सर, यहां तक कि मकाऊ जैसा शहर भी हमसे आगे है। सर मेरा प्रश्न है मंत्री जी से, You are supposed to ask the question. You are giving a big lecture. सर आ गया, You are taking 3, 4, 5 minutes. सर हो गया जी। मेरा मिटल जी, मंत्री जी से This प्रश्न is है not good. कि जयपुर का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है, क्योंकि इसकी डेडलाइन दिसंबर 26 बहुत ही नजदीक आ रही है। this is your question, na? हाँ जी, हाँ। You should have come in the first itself. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। Mr. You need not answer to all his speech. You just answer only to his last 2 lines the question. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का राजस्थान के बारे में, मेरे राज्य के बारे में जो कुछ इन्होंने कृपा पूर्वक शब्द कहे उसके लिए आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जयपुर का हेरिटेज स्टेटस बना रहे, इन्होंने जो कालूपुर रेलवे स्टेशन और मेट्रो रेलवे स्टेशन के एक्सपेंशन को लेकर उसके सामने जो चुनौती खड़ी की है, मुझे लगता है कि रिपोर्ट पढ़ने में इनसे कहीं चूक हुई है। कालूपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन जो है जयपुर में नहीं अहमदाबाद में बन रहा है, तो इसके कारण से जो है कहीं कंफ्यूजन हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से राज्य सरकार और देश की सरकार दोनों को इसके लिए संज्ञान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं सैंक्शन, उनके लिए सैंक्शन देना, उनका हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट कराना, ये सब राज्य सरकार के तहत आता है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने विषय संज्ञान में लाया है, तो निश्चित रूप से गंभीरता को देखते हुए इस पर गंभीरता से काम करें, ये बहुत ही आवश्यक भी है। मैं माननीय सदस्य का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। Second supplementary, only question, please. होगा सर हम सब जानते हैं जो हमारा भारतवर्ष हमारे महान गुरुओं और संतों की धरती है, और इसमें हमारे पूज्य श्री गुरु नानक देव जी। Again you are going back. सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर वो पंजाब के लिए और देश के लिए सर। Question, please. सर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना सर बाकी जगह भी मौका देते हैं सर, बैकग्राउंड का मुझे भी दे दीजिए टाइम। Don't look at them. You just come to the question. सर हमारे पूज्य श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने पूरी दुनिया को इंसानियत और भाईचारे का मार्ग सिखाया। सर हमारे देश में 5 तख्त साहिब हैं और ऐसे ही ऐतिहासिक गुरुद्वारे तथा धार्मिक स्थल हैं जिनकी समृद्ध हेरिटेज और इतिहास है। सर एसजीपीसी और दूसरी कार सेवा से जुड़ी संस्थाएं सिख विरासत को सरोजने का बहुत ही पवित्र कार्य कर रही हैं, जो सर प्रशंसनीय है। सर वर्ष 1511 में उदासी यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी बगदाद गए सर। श्री गुरु नानक वहां सर एक पवित्र मौजूद है। सर आ गया जी, सर आ गया। श्री गुरु नानक देव जी बगदाद गए इराक में, और वहां एक पवित्र ऐतिहासिक स्थल मौजूद है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद अमेरिका इराक वार के दौरान काफी डैमेज हो गया। इसी प्रकार विदेशों में और भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब हैं और सिख धरोहर स्थल हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं सिख धर्म के बारे में बात कर रहा हूं यार, क्यों रोक रहा हूं? जी प्लीज। मैं सरकार से सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिलकर दुनिया भर में मौजूद सिख धरोहर और ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब की पहचान करके उनके रिस्टोरेशन के लिए और साइंटिफिक कंजर्वेशन के लिए कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने पर विचार कर रही है या नहीं, और यदि नहीं, माननीय विदेश मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस चीज में पहल करें ताकि हमारे गुरुद्वारों साहब से जुड़े पवित्र स्थलों को देश में और विदेशों में हम द्वारा पुनर्जीवित कर सकें। You have made a Guinness record in the length of the question. This is the longest question ever asked in the Parliament, I think. माननीय सभापति महोदय,
माननीय सम्मानीय सदस्य आखिर में प्रश्न पे आ गए, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कि भारत की धरोहर, भारत के फुटप्रिंट, भारत के कल्चरल फुटप्रिंट जो पूरी दुनिया में है, उनके बारे में चर्चा की है। भारत सरकार एक योजना के तहत ऐसे सारे भारत के कल्चरल फुटप्रिंट्स, चाहे वो सिख रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड हो या हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, इन सब के जो भारत के कल्चरल फुटप्रिंट्स हैं उनके बारे में एक योजना बना करके उस पर काम करता है। मैं माननीय सदस्य को सिर्फ संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो सीमा के उस पार में है, आज वो भारत के नागरिकों के लिए, दर्शन के लिए, सिख बंधुओं के दर्शन के लिए, जो कभी सीमा के इस पार खड़े होकर के दर्शन कर पाते थे, आज उनके लिए उपलब्ध है। मैं माननीय सदस्य को सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, माननीय विदेश मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए कि जब अफगानिस्तान में चुनौती आई तब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्होंने गुरु साहब का रूप जो वहां अफगानिस्तान में था उसको वापस भारत में प्रत्यार्पित किया और सहसम्मान वापस ला करके स्थापित किया। भारत अपनी रूट्स, अपनी कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है, काम भी। वैश्विक परिदृश्य में सामने खड़ी चुनौतियों को देखते हुए जो सीमितताएं, उन सीमितताओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से अपनी जो है धरोहर के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान संजय यादव।